السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں، میرے ملت کے نوجوانوں، کل الحمدللہ آپ حضرات نے نماز عید الفطر ادا کی اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی ادا کی۔ اللہ ہمارے اس ادا ہونے کو قبول فرما لے۔ آج شوال کا پہلا جمعہ، شوال مہینے کا پہلا جمعہ ہو رہا ہے، جس میں کل عید الفطر ہونے کی وجہ سے ہمارے بھائی حضرات بہت سارے تو خواب خرگوش میں ہوں گے کہ آج جمعہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن سے یہ بات اتری ہوگی کہ آج جمعہ ہے، کیوں؟ کل جو نماز عید الفطر پڑھی ہے اس کا اثر جمعے میں پڑ گیا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ بھول جائیں گے کہ آج نماز جمعہ پڑھنی ہے، اس کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مسجدوں پر بھی ہے۔ لوگ جو آتے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر آج جمعے کی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس دن نماز عید ہوتی ہے، عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اور وہ جمعے کا دن ہوتا ہے، تو جمعے کے دن جمعے کے وقت میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، تو ان کے ذہن میں نہیں رہتا، وہ بھول جاتے ہیں کہ آج جمعہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے کل جو عید الفطر پڑھی ہے یہ بھول گئے کہ آج نماز جمعہ بھی پڑھنی ہے۔ بہرحال اس دنیا میں جب انسان آیا ہے تو اس دنیا سے انسان کو جانا بھی ہے۔ کتنا بڑا ملحد کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا وہ آدمی جو کچھ بھی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ دنیا ایسی بسی ہے اور یہ دنیا ایسی ہی بن گئی ہے، خود سے وجود میں آئی ہے اور خود سے ختم ہو جائے گی۔ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کا منکر ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں، اس کا منکر ہے، اس کا وہ انکار کرتا ہے۔ لیکن اس سے پوچھے تم کو مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے، تو وہ کہا مرنا ہے۔ تم کو مارنے والا کون ہے؟ تم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہاری آنکھ کو بنانے والا کون ہے؟ تمہارے پیروں کو صحیح سمت میں چلانے والا کون ہے؟ تمہارے ہاتھوں میں جو انگلیاں اللہ نے عطا کی ہے، اس کو مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے اس کو نمونے کو بنانے والا کون ہے؟ انگلی اگر چاروں پانچوں کی پانچوں برابر ہوتی تو پکڑنا مشکل ہوتا۔ اللہ نے کس انداز سے اس کو بنایا ہے، یہ بنانے والا کون؟ تمہارے کانوں میں سننے کی سماعت دینے والا کون؟ تمہاری ناکوں میں سننے والی طاقت دینے والا کون؟ تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ انسان اگر اپنے اعضاء پر سوچ لے تو انسان یہ بولنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ وہی اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ یہاں مومن نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، بلکہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام
इंसानों का रब अगर कोई है तो वो अल्लाह है। ऐ लोग अपने रब से डरो। और आगे क्या फरमाया, बख्शो यौमल लजी वालिदुन वलद। और किस दिन से डरना है? अल्लाह कहता है उस दिन से जिस दिन बख्शो यौमल ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी, कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो अपने बेटे के बदले में सजा पाएगा, या अपने बेटे के बदले में अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएगा। दुनिया का तो ये दस्तूर है कि बेटे ने कत्ल किया, बाप हाजिर हो जाता है, ये कत्ल मैंने किया है, अपने सर ले लेता है। या मिसाल के तौर पर कष्ट दरिया के अंदर चल रही है, या और कहीं मामला पेश आ जाए, मुसीबत पेश आ जाए, तो हर बाप और माँ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मुसीबत मेरे सर आ जाए और मेरा बच्चा बच जाए, है कि नहीं? बच्चा बीमार हो जाता है, लड़का बीमार हो जाता है, बच्चियां बीमार हो जाती है, तो हर माँ बाप ये चाहते हैं कि ये वक्त मुझे लगता लेकिन मेरे बच्चे अच्छे रहते, तंदुरुस्त रहते। कश्ती जब चल रही होती है, कश्ती जब भंवर में फंसती है, तो माँ बाप चाहते हैं किसी तरीके से अपने बच्चे को बचा दो, मेरे ऊपर मुसीबत आ जाए, मैं डूब जाऊं लेकिन हमारा बच्चा निकल जाए। लेकिन क़यामत के दिन बख्शो यौमल ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी, कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बेटे के बदले में सजा पाएगा। और आगे अल्लाह क्या कहता है, वला मौलूद हुवा जाज़िम अन वलिदिही शैआ, और कोई बेटा भी ऐसा नहीं होगा जो अपने बाप के बदले में जर्रा बराबर भी सजा पाए, या उसके बदले में अपने को पेश करे। सबको अपनी अपनी बड़ी होगी क़यामत के दिन मेरे भाइयों, सबको अपनी फिक्र होगी कि मेरा क्या बनेगा, मेरे ऊपर क्या गुजरेगी, मेरा हिसाब कैसा होगा, मैंने दुनिया में क्या कमाया, क्या खोया, मेरे साथ अल्लाह का बर्ताव क्या होगा, मेरे साथ जहन्नम का फैसला होगा या जन्नत का फैसला होगा, कैसा फैसला होगा कोई नहीं जानता है। सब परेशान होंगे, माँ अलग परेशान होगी, बाप अलग परेशान होगा, बेटा अलग परेशान होगा, बेटी अलग परेशान होगी, बीवी अलग परेशान होगी, सबके साथ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा मेरे भाई। अल्लाह कहता है बख्शा यौमल ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िम अन वलिदिही शैआ इन्न वअदल्लाहि हक़। अल्लाह कहता है इन्न वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा हक है। अल्लाह ने जो फरमा दिया वो हक है, उसमें जरा बराबर आगे पीछे होने वाला नहीं है। अल्लाह का फैसला अदल है, उसने सुना दिया है कि सबको अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा, तो सबको अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से दुनिया के अंदर जब कोई इम्तिहान देता है तो सबको अपना अपना लिखना पड़ता है। अब तो चोरियां होने लगी, अब तो पैसे दे दिए कोई किसी का पर्चा हल कर रहा है, लेकिन जहां मामला बिल्कुल सख्ती का होता है सबको अपना पर्चा हल करना पड़ता है। इसी तरीके से क़यामत के दिन याद रखिए अपना पर्चा खुद हल करना पड़ेगा, और वो पर्चा हल कहाँ होगा, दुनिया में हल करके जाना पड़ेगा, दुनिया में हल करके जाना पड़ेगा। आपको अच्छे काम करके दुनिया में जाने पड़ेंगे, वहां कोई मौका नहीं है। आपने भी यहाँ पर्चा लिखा है, वो पर्चे का नतीजा कहाँ निकलेगा, क़यामत के दिन निकलेगा। आप फैसला करें कि हमको कैसा पर्चा लिखना है, जहन्नम वाला पर्चा लिखना है या जन्नत वाला लिखना है। सवाल तो अल्लाह ने दे दिए हैं, जवाब हमें तैयार करने हैं। जवाब कैसे तैयार करने हैं, हमें फैसला करना है। हमें नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी है, फैसला हमें करना है। कुरान के बताए हुए तरीके पर अमल करना है नहीं करना है, हमें फैसला करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करना है नहीं करना है, हमें फैसला करना है। यही का फैसला, आपका फैसला वहां अल्लाह के यहाँ होगा। इसलिए जो कुछ करना है, बेहतर करना है, यहाँ कीजिए। ये मत सोचिए कि देखा जाएगा, जैसा कि हम लोग कह दिया करते हैं, देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा, क्या वहां मौका मिलेगा, वहां को मौका मिलेगा। हमारे जैसा आदमी वहां कहेगा क़यामत के दिन ये अल्लाह थोड़ा सा मौका देते, दुनिया में फिर दोबारा भेज दे, दुनिया में फिर दोबारा भेज दे। जब तू भेजेगा तो मैं अच्छे अच्छे काम करके आऊंगा, सबको खराब करके आऊंगा। अल्लाह कहता है नहीं नहीं, जो आ गया वो जाता नहीं, जो चला गया था वो फिर दोबारा आता है।
इंसान जब यहाँ से चला गया तो दुनिया में दोबारा नहीं आ सकता। कहा तुमको हजारों साल अगर भेजे फिर भी वही काम करके आओगे जो इससे पहले करके आए हो। इसलिए मेरे भाइयों, इन्ना वादल्लाहि हक, अल्लाह का वादा हक है, अटल है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें दुनिया में अच्छे काम करने चाहिए। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुमको दुनियावी जिंदगी धोखे में न डाले। ये दुनियावी चमक जमक ये रानाइयाँ या खूबसूरती दुनिया की तुमको धोखे में न डाले कि हमको दुनिया ही में रहना है, इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया से रुखसत होना है। इस चक्कर में मत रहो, इस दुनिया से रुखसत हर हाल में होना है। यहाँ दुनिया की चमक दमक को देख करके, यहाँ की रानाइयों को देख करके, यहाँ की खूबसूरतियों को देख करके, यहाँ की दौलत को देख करके, यहाँ के महल को देख करके, यहाँ के अपने घर को देख करके, अपनी औलाद को देख करके खुश मत हो। ये दुनियावी जिंदगी है, यहाँ से तुमको रुखसत होना है। और फिर अपनी मुस्तक़बिल व मताउल आखिर, अल्लाह ने जब भेजा था तो उसको कहा था कि तुमको जब दुनिया में भेज रहे हैं थोड़े दिनों के लिए भेज रहे हैं। अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा तो अल्लाह ने कहा था कि हम तुमको दुनिया में भेज तो रहे हैं लेकिन कितने दिन के लिए? मताउल आखिर, चंद दिनों के लिए। अच्छा दिन क्या है? 60 साल, 100 साल, 150 साल। अब तो और कम हो गया। अब 100 साल को जिंदा रहना बहुत बड़ी बात है। सब केमिकल से मिला हुआ खाना मिल रहा है, ग़िज़ा मिल रही है, क्या जिंदा रहेंगे हम? और ऊपर से एक से एक कोरोना वायरस के नाम पर इंजेक्शन लगा दिया गया। सबको लग गया, सबकी हड्डियां कमजोर हो गई, सबके दिल कमजोर हो गए। जी, जो हज़ार दवाएं नहीं खाते हैं वो तंदुरुस्त थोड़ा रखते हैं। जो लोग ज्यादा दवा खाते हैं उनकी तंदुरुस्ती खत्म होती जाती है। अभी बूढ़ों को देखिए, उनकी हड्डियां मजबूत हैं, लेकिन हम लोग की हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। क्यों? सारी ग़िज़ाएं हमें दुनिया भर के केमिकल से मिली हुई यूरिया, ये खाद वो खाद मिला मिला खा रहे हैं। आज कद्दू इतना बड़ा है, एक हफ्ते के बाद इतना बड़ा तैयार होकर आ जाता है हमारे पास। क्यों? इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो वो ग़िज़ा जब हम खाएं तो हमारे हालत क्या होंगे? ये मुर्गियां जिसको हम खा रहे हैं कागज की तरह है। इन मुर्गियों को देख लीजिए, इन मुर्गियों को महीनों के अंदर तैयार कर दिया जाता है, बाजार में तैयार हो जाती है। तो ऐसी ग़िज़ा हम खा रहे हैं तो हमारे हालत क्या होंगे? बहरहाल अल्लाह कहता है फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी धोखे में न डाले। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, तुम हरगिज़ धोखे में ना आओ अल्लाह के नाम से। ये दुनिया धोखे वाली है, शैतान तुमको धोखा देगा। दुनिया है, देख लो, फिर देखा जाएगा। जितने गुनाह के काम करने हैं कर लो, देखा जाएगा। चोरी करना कर लो, देखा जाएगा। डकैती करना है डाल लो, देखा जाएगा। दोस्तों के ऊपर जुल्म करना है डाल जुल्म कर लो, देखा जाएगा। दोस्तों के ऊपर दोस्तों को सताना है सता लो, देखा जाएगा। कुछ नहीं देखा जाएगा, कोई काम नहीं देगा। यहाँ दोस्त हमारा भी काम दे रहे, साथ दे रहे, लेकिन वहां कोई काम नहीं देगा मेरे भाइयों। जी, तो अल्लाह कहता है ये दुनियावी जिंदगी तुमको धोखे में न डाले, इसलिए कि शैतान तुमको धोखा दे रहा है दुनिया की चमक दमक को देख करके। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दुनिया से हमें रुखसत होना है, और रुखसत होने के लिए इंसान तैयारी करता है। इंसान तैयारी करता है। तैयारी क्या है? अच्छे काम करना, नमाज की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करना, यही आपकी तैयारी है। भाई हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आते हैं, तो वो अपने कपड़े ले लिया करते हैं, रास्ते के लिए पानी ले लिया करते हैं, लंबा सफर है तो खाना भी ले लिया करते हैं। क्यों? हमें फलाना जगह जाना है। हमें भी तो कहीं जाना है, जाना है ना भाई, कहीं जाना है, बोलिए जाना है ना, इंशाअल्लाह बोलिए जाना है। मोमिन तो मौत के लिए तैयार रहता है। मोमिन तो मौत का खौफ नहीं, मोमिन तो मरने के लिए आया है। कालो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह तो तेरे ही लिए है और तेरी तरफ लौटकर आना है। तो मोमिन मौत से नहीं डरता है मेरे भाइयों, ये हर वक्त तैयार रहता है। तो बहरहाल हमें जाना है
جانے کی تیاری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اسی سے ہماری زندگی آئے گی۔ اگلی بات، اگلی آیت، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے کس کے پاس علم؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے، اے نبی آپ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے فرمایا کہ سوال کرنے والا زیادہ جانتا ہے جن سے سوال کیا جا رہا ہے، یہ زیادہ جانتا ہے۔ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی قیامت جو آتی رہتی ہے، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کہیں آگ لگ گئی، کہیں پورا علاقہ ختم ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی جھلکیاں دکھاتا ہے کہ میں موجود ہوں، یاد رکھو میں موجود ہوں۔ سیلاب آ گیا بہا دیا، اللہ دکھاتا ہے سمجھ جاؤ میں موجود ہوں، میری موجودگی کو سمجھو۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، اس لیے قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کی جائے۔ قیامت کی تیاری ہمارے اچھے اعمال ہیں، اچھے کردار ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، ایک بات، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں ہوگی؟ اللہ کہاں اتارے گا بارش کو؟ کیا کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ بارش کہاں ہوگی؟ کتنی مقدار میں ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ کیا پورا علاقہ ڈوب جائے گا؟ کیا کھیتیاں برباد ہو جائیں گی؟ سب کچھ اللہ جانتا ہے کہ بارش کہاں کتنی نازل ہوگی، کتنی بارش ہوگی، یہ اللہ کے علم میں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ناگوے میں بارش ہو رہی ہے لیکن مبارک پور سوکھا ہوا ہے، کہیں مبارک پور میں بارش ہو رہی ہے ناگوے بھیگا ہوا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں خشک پڑا ہوا ہے، بہار میں سیلاب آ گیا، اب دیکھ لیجیے کبھی یہاں خشک ہے، امریکہ میں سیلاب آ گیا، یہ اللہ جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری بات، ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم، بارش کب کہاں ہوگی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، جانتا ہے کوئی؟ اب آپ کہیں گے کہ قاری صاحب اب تو مشینیں ایسی ایسی ایجاد ہو گئی، وہ بتا دیتا ہے کہ اب یہ لڑکا ہے کہ لڑکی، کب بتاتا ہے؟ کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنانا شروع کرتا ہے، اس کی نشو و نما شروع کرتا ہے، آنکھوں کا ڈھانچہ، ہاتھوں کا ڈھانچہ، تمام ڈھانچے بنانا شروع کرتا ہے، تب مشین بناتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس وقت جانتا ہے جس وقت مرد کا لطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس وقت اللہ جانتا ہے کہ اسے لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا، وہ ماں نہیں جانتی، وہ باپ نہیں جانتا، دنیا کی طاقت کیا جانے گی؟ دنیا کی طاقت بعد میں بتاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھا دیتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کو لڑکا یا لڑکی بناتا ہے، تب مشین بتاتی ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کتنی باتیں تھیں؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، تین باتیں ہوئی۔ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، انسان کل کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، کل وہ کس پر ظلم کرے گا کوئی نہیں جانتا، مظلوم بنے گا کوئی نہیں جانتا، ڈکیتی ڈالے گا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سر جھکائے گا کوئی نہیں جانتا، اللہ کی فرما برداری کرے گا کوئی نہیں جانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا کوئی نہیں جانتا، کل کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا۔ ایسی بھی بات وہ بھی آتی ہے کل کیا کمائے گا کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائی وما تدری نفس بأي أرض تموت، چوتھی بات کون کہاں مرے گا کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ گیا تھا رشتہ داری میں، اللہ نے روح نکلوا دیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے روح نکل گئی، خبر آئی کہ یہاں تفریح کرنے کے لیے آئے تھے، ملاقات کے لیے آئے تھے، روح نکل چکی ہے، موت آ چکی ہے۔ ہم کہتے خوشی سے
अपनी बहन के यहाँ, लेकिन रूह परवाज कर गई। गए थे बेटे के यहाँ, रूह परवाज कर गई। गए थे भाई के यहाँ, रूह परवाज कर गई। गए थे दोस्त के यहाँ, रूह परवाज कर गई। गए थे अमेरिका घूमने के लिए, रूह परवाज कर गई। गए थे सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए, रूह परवाज कर गई। गए थे उम्रा के लिए, रूह परवाज कर गई। गए हज करने के लिए, रूह परवाज कर गई। कौन जानता है? कोई नहीं जानता मेरे भाइयों के, मेरी रूह कब निकल दी जाएगी। है किसी को मालूम? आलिम को मालूम, नबी को मालूम, मुफ्ती को मालूम, मुहद्दिस को मालूम, किसी को मालूम नहीं। दुनिया की कोई तकदीर बता सकती है कि मेरी मौत कब आएगी। मेरे बहुत दोस्त, जब मौत आनी है, अगर इसका कोई इल्म नहीं हमारे पास कि हमारी मौत कब आएगी, तो हम ये क्यों इंतजार करते हैं कि चलो अभी तो हम 30 साल के हुए हैं, अभी तो 40 साल के हुए हैं, अभी तो 50 साल के हुए, जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी है, फिर नमाज पढ़ लेंगे, फिर नमाज पढ़ लेंगे। क्या आपको इल्म है कि मैं 50 साल जीऊंगा, 75 साल जीऊंगा? अल्लाह कहता है कब मौत आ जाएगी कुछ पता नहीं मेरे भाइयों। बाप बड़ा है, बेटा रुखसत हो गया, बेटी रुखसत हो गई, दादा जिंदा है और देखा कि पोता रुखसत हो गया। किसको इल्म है? जब इसका इल्म हमारे पास नहीं मेरे भाइयों, तो याद रखिए हम अपने मौत की तैयारी करें, क़यामत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। अक्लमंद वो है, होशमंद वो है, बेहोश वो है जो अपने मरने से पहले अपने मौत की तैयारी कर ले। ये सोए रहना, अभी तो मेरी 50 साल है, 75 साल जिंदा रहना है, थोड़ा बहुत आल गुजार ले, जब और बूढ़ा पाएंगे तो मस्जिद पकड़ लेंगे जी। जब ये हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो क्या आप सजदा कर पाएंगे? अब क्या इल्म है आपके पास? आज आप सोच रहे हैं कि कल से नमाज पढ़ूंगा, मौत रात में आगे दबोच लेगी। इसलिए मेरे भाइयों, ये चंद बातें जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, ये दिल पर लगने वाली बातें हैं। अगर आपके दिल पर बातें लग रही हैं तो इसे असर लीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। अपने मरने से पहले अपने मौत की तैयारी कीजिए। वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि तमूत, इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। बेशक अल्लाह का बदला जानने वाला है, तमाम चीजों की खबर रखने वाला है। उसी के पास इल्म है कि हमारी मौत कब आएगी। तो अक्लमंद वो हजरात होंगे जो अपने मौत की तैयारी करेंगे। क्या अभी कभी आपने ये सोचा है, कभी आपने गौर व फिक्र किया इस बात पर कि आपने एक दुकान कर ली, अब वो दुकान पर आप न जाएं तो क्या ग्राहक आपको पैसे देकर ऐसे चला जाएगा? उसकी तैयारी करते ना भाई, कहीं आपको काम में जाना उसकी तैयारी करते हैं। भाई सुबह 7 बजे ड्यूटी जाना है, मेरा नाश्ता तैयार हो जाए, मेरा खाना तैयार हो जाए, दोपहर का तैयारी कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, कपड़े तब्दील कर रहे हैं। कहाँ के लिए? जहाँ आपको काम करने के लिए जाना है, अपनी दुकान पर जाना है। हमें तो ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना है, तो उसकी तैयारी क्या कर रहे हैं? उसकी तैयारी ये है कि हम नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करें, सदका और खैरात करें, अच्छे अखलाक से लोगों से पेश आए, लोगों से जले नहीं, लोगों से हसद न करें, लोगों से कीना न रखें, लोगों से बोझ न रखें। आज ये बीमारियां हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। बोझ रखना, कीना रखना, हसद करना, जलन करना, एक दूसरे से बहुत बुरी चीज हमारे अंदर शामिल हो चुकी है। अल्लाह हमारी इसी हिफाजत फरमाए। यही हसद जलन की वजह से इंसान एक दूसरे को मार डालता है, एक दूसरे को मना कर देता है, एक दूसरे को जलील कर देता है, एक दूसरे की इज्जत को उछाल देता है। ये हसद और जलन की वजह से होता है, बोझ की वजह से होता है। मेरे भाइयों, एक दूसरे से बोझ मत कीजिए, एक दूसरे से हसद मत कीजिए, एक दूसरे से कीना मत रखिए। ये तमाम बातें आपके सामने इसलिए मैंने पेश की कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, चाहने वाले हैं, तो हमें उन्हीं बातों पर अमल करना चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये तमाम बातों पर हम तमाम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का बदला आपकी इस इंशाअल्लाह को कबूल फरमाए और अल्लाह का बदला हम तमाम लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुन्नत पढ़ ले भाई।